हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वी बिलीव आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। नाउ टाइम टू डिस्कस द पॉलिटी MCQs, the test which we conducted on last Sunday. So we start with the very first question, and that is, consider the following statements regarding presidential election in India. Any candidate seeking to contest the presidential election must be proposed by at least 50 electors, and electors are here MPs and MLAs. As we know, the electoral college for the president election, it is all the elected MPs, all the elected MLAs in the state, and all the elected MLAs in Delhi and Puducherry. So यहाँ पर 50-50 करके हम इसको याद रखते हैं कि 50 इलेक्टर एज प्रपोजर चाहिए एंड अनदर सेट ऑफ इलेक्टर्स 50 इलेक्टर्स वो चाहिए सपोर्टर के तौर पे, बिकॉज प्रपोजर पूछा है तो स्टेटमेंट करेक्ट है. Then the president is elected by an electoral college consisting of elected MP, including both Lok Sabha and Rajya Sabha, as we discussed. Yes, it is there. And then electoral college also consists of elected MLAs in the states and union territories of Delhi and Jammu and Kashmir. So here it is being asked which is the incorrect option. So here none of the option is incorrect. Move to which of the following statement is correct. The president holds office for a term of 5 years from the date which they assume office. Yes, it is correct. Then they are eligible for re-election. So देखिए हमारे यहाँ री-इलेक्शन पे कोई बार नहीं है, अनलाइक यूएस सिस्टम. यूएस में कोई भी पर्सन अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है. लाइक अपनी लाइफ टाइम में डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरी बार इलेक्ट हो चुके हैं, तो अब वो थर्ड टर्म के लिए कंटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे. लेकिन इंडिया में ऐसी कोई बार नहीं है और n नंबर तक आप री इलेक्ट किए जा सकते हैं. देन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. यस, इट इज ऑल्सो देयर. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पहले पंजाब ने सीनियर एग्जीक्यूटिव PCS के पेपर में पूछा था, दोनों ऑप्शन डाल दी थी. मतलब यही कि वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कितना टाइम सर्व करता है. एक ऑप्शन थी 6 मंथ तक, दूसरी ऑप्शन थी अंटिल द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अज्यूम द ऑफिस. अब अगर ये दोनों टर्म आती हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे अंटिल द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अज्यूम द ऑफिस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यही वर्डिंग यूज की गई है. Then the real executive power lies with the Council of Ministers headed by the Prime Minister. So we know we are into the parliamentary form of government, जहां पर president de jure head होते हैं, constitutional या nominal head हैं, और real power lie करती है Council of Minister में. As per Article 74, there shall be a Council of Minister headed by PM to aid and advise the president, who shall act duty bound, who shall act according to such advice. So here if we come, then we have to find the correct answer. So all the statements are correct here. Next is, in the context of presidential powers in India, consider the following statements. The president is the formal head of the executive branch of the government. As we discussed, yes, it is a ceremonial post or the constitutional head, not real working president. Then when parliament is not in session, the president cannot use ordinances. ये कुछ बच्चे मेरे पास ये लेके भी आए थे कि सर ये तो सही है, और ये स्टेटमेंट पढ़ते हुए इतनी जल्दबाजी की स्टूडेंट्स ने कि कैन नॉट नहीं अंडरस्टैंड किया, बल्कि यही पढ़ गए कि प्रेसिडेंट कैन इशू द ऑर्डिनेंस. सो यहाँ पर कैन नॉट है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. देन प्रेसिडेंट समन्स प्रोरोग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट and address both houses at the commencement of the first session of each general election. So as per Article 87, it is correct. कम से कम 2 मौकों पे तो एड्रेस करते ही हैं. एक हर साल जब बजट सेशन शुरू होता है, जैसे अभी एड्रेस किया था, और जब भी इलेक्शन होगा लोकसभा का, तो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा को भी एड्रेस करने आएंगे प्रेसिडेंट साहब. So here it comes that how many of the statements are correct. So here, if we go by that, 1 and 3, only 2 statements are correct. Move to, with respect to the powers of president in India, consider the following statements. The president has the power to grant pardons, reprieve, respite, remissions of punishment, or to suspend, remit, or commute sentence of any person convicted of an offense. Article 72, and president enjoys all these powers. Although these are not discretionary power, as per advice of Council of Minister ही इनको वो
यूज करेंगे. Then certain offenses such as those under military law are not subjected to the president pardoning power. This is a wrong statement because the president is supreme commander of the defense forces. तो वो अपनी pardoning power defense forces के लिए भी यूज कर सकते हैं. Unlike the governor का defense forces कुछ नहीं लेना देना है, तो governor अपनी pardoning power which is provided under Article 161 defense forces के लिए यूज नहीं करेंगे. So here only one is the answer. Moving to in the context of legislature of the union, consider the following statement. The fourth schedule of the constitution deals with the allocation of seats to the Rajya Sabha, to the states and union territories. The representative of states in the Rajya Sabha are elected by the elected members of legislative assemblies. Then election is held in accordance with the system of proportional representation and by means of single transferable vote. And the seats are allocated or allotted to the states in the Rajya Sabha on the basis of population and how many are the correct options. So this question largely looms around the Rajya Sabha election. So all the statements are correct. So if we go one by one, fourth schedule है ही सीधा किस चीज के लिए? राज्यसभा की सीट्स की लोकेशन है. आपको लिस्ट मिल जाएगी, स्टेट्स के यूटी के नाम लिखे और कितनी सीट है उनकी राज्यसभा की. देन रिप्रेजेंटेटिव जो भी चुने जाते हैं स्टेट से, सो दिस इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन. राज्यसभा इलेक्शन, सपोज पंजाब में 7 सीट्स हैं, तो पीपल ऑफ पंजाब विल नॉट वोट फॉर, रादर इलेक्टेड मेंबर है कि याद रखिएगा, है कि यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो अगर स्टेट में कोई नॉमिनेटेड एमएलए है वो वोट नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्टेड एमएलए ही वोट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में. फर्दर इट इज कंडक्टेड ऑन द बेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. प्रेफरेंस वोट करना होता है, किसी एक बंदे को वोट नहीं करेंगे बल्कि जितने कैंडिडेट खड़े हैं उतने लोगों को प्रेफरेंस दिया जा सकता है कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, दूसरी चॉइस अलग पर्सन है, तीसरी चॉइस अलग पर्सन है. देन सीट्स जो राज्यसभा को दी गई. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. लाइक अगेन इफ वी कंपेयर विद द यूएस सेनेट, जो फेडरल हाउस है यूएस का, वहां पर स्टेट चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे पॉपुलेशन कम है या ज्यादा है, सभी के 2 रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते हैं सेनेट में, जिसको सिमेट्रिक फेडरलिज्म की निशानी माना जाता है. लेकिन हमारे यहाँ असिमेट्रिक फेडरलिज्म, और हमारे यहाँ पर राज्यों को उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल पंजाब इज हैविंग 7 सीट्स, यूपी इज हैविंग 31 सीट्स. डिफरेंट है, इसको असिमेट्रिक फेडरलिज्म की निशानी माना जाता है. सो here we come, the correct statement if we found, okay, all are correct, all 4 are correct. Then with respect to the powers and privileges of members of the parliament in India, consider the following statement. This is just to have more points in our knowledge. So informative based question hai. Government of India Act 1935 introduced these provisions in India which were inspired by Britain House of Commons. देखिए, जब ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स डेवलप हो रहा है, अपनी पावर को असर्ट करता है, तो किंग की पावर से सिक्योर करने के लिए कुछ इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेज वहां पर एज अ कन्वेंशन डेवलप हुई हैं, और उन्हीं चीजों को जीओआई 1935 के थ्रू भी इंडिया में लाया गया. देन आर्टिकल 105, द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर एनश्राइन्ड इन आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. याद कर लीजिए, 105 में ही इम्यूनिटी एंड प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट रखा गया है. अ डेफेमेटरी सूट cannot be filed for a statement made in the house, and speaker or house handles free speech breaches instead of court for house of members. So if I talk about immunities and privileges, so 2 heading में आप इसको बांट सकते हैं. एक immunities which is enjoyed by the MPs as individual, and then other immunities which is enjoyed by the house collective, और वो चेयर की तरफ से ऑथराइज किया जाता है, मतलब चेयर उसको एक्सरसाइज करती है अथॉरिटी को. सो अगर बात करें एमपीज की, तो इफ यू आर एमपी देन यू आर हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन व्हिच इज लार्जली इन द क्वेश्चन, देन फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड फ्रीडम फ्रॉम जूरी सर्विसेज, एंड देन कम टू हाउस. सो हाउस is having right to exclude any person from the ongoing business of the house itself, then right to publish or not to publish of its proceeding, and then right to punish as well, even for contempt of the house. So here it comes कि defamation suit नहीं फाइल कर सकते हैं. मतलब
अगर किसी पार्लियामेंटेरियन की स्पीच डिफेमेटरी भी हो गई हाउस के अंदर, तो बाहर किसी थाने कचहरी में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। पर ये याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट ही फ्रीडम है और दुनिया की कोई ताकत वहाँ की स्पीच को रेगुलेट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, they will handle or reasonably restrict the free speech। अगर फ्री स्पीच का ब्रीच हो रहा है, अगर वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं अपनी ब्रीच का। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि गालियों पे ही उतारू हो जाएं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। सो हाउस इज हैविंग द अथॉरिटी टू कर्टल द फ्री स्पीच एंड ऑल्सो टू पनिश सच मेंबर। सो here it comes that 1, okay, 1 2 3 and then 4, all 4 are correct options and we have to find correct। ये जरूर देख लिया करें भाई। Regarding the session of the parliament in India, consider the following statements। The summoning of the parliament is specified in article 85 of the constitution। अब देखिए, समन कब करना है ये नहीं बताया गया है, लेकिन समनिंग की पावर को मेंशन किया गया है। Then it is based on the provision of GOI 1935। हाँ, उसमें भी इस तरह की चीजें इंक्लूड की गई थी। हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ब्रिटिश टाइम में ही डेवलप होना शुरू हो गया। Then India does not have a fixed parliamentary calendar। Yes, it is also correct, and by convention, Parliament meets 3 sessions in a year, and we have to find the correct option। तो सेशंस के बारे में एक बात समझ लें कि आर्टिकल 85 में जरूर समनिंग की प्रोविजन की गई है, और शर्त साथ में ये कि पार्लियामेंट के किन्हीं 2 सेशन में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर कब मीटिंग होनी है, कब उसको खत्म करना है, इसका स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, और ना ही हम कोई पार्लियामेंट्री कैलेंडर प्रॉपर फिक्स्ड डील करते हैं। यहां पे फिक्स से मतलब ये है कि डेट पहले से तय नहीं होती है साल में कि कब कौन सा सेशन होगा। मतलब या तो प्रेसिडेंट साल की शुरुआत में ही कैलेंडर निकाल दें कि इस तारीख को सेशन की समनिंग होगी, इस तारीख को प्रोरोग होगा, फिर नेक्स्ट सेशन समन किया जाएगा। तो ये लार्जली प्रेसिडेंट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कॉल करते हैं, ऑब्वियसली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसे अगर मॉनसून सेशन है तो वो जुलाई टू अगस्त भी हो सकता है, अगस्त टू सितंबर भी हो सकता है। तो कोई फिक्स कैलेंडर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की शर्त है कि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और हमें वो नौबत नहीं आती है क्योंकि बाय कन्वेंशन हम 3 रेगुलर सेशन कॉल करते हैं, दैट इज बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। बजट, मॉनसून, विंटर, बीएमडब्ल्यू जो बहुत स्लो चलती है, मतलब बहुत सारा डिसरप्शन यहां पर हो जाता है। So we have to find correct, and here we go C, all are correct option। Move to, with respect to the parliamentary proceeding in India, consider the following statements। The 0 hour is usually used to raise matters that are urgent and can wait for notice period required under the procedure। अब नोटिस पीरियड की बात करें तो 10 डेज का नोटिस पीरियड है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी क्या है, सिली मिस्टेक करवाने वाला क्वेश्चन है। दैट यहां पर लिख दिया गया कि अर्जेंट मैटर रेज करना है, और फिर कह दिया है दैट मैटर कैन वेट फॉर नोटिस पीरियड। सर, अर्जेंट मैटर तो है कि वो नोटिस पीरियड की वेट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड देन फॉर रेजिंग मैटर्स ड्यूरिंग 0 hour, MPs गिव नोटिस बिफोर 10 AM to the chairman on the day of sitting। Now here it comes, first is wrong but second is the correct option। So we are having our D answer। 0 hour इंडियन इनोवेशन है, 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी, और क्वेश्चन आवर और एजेंडा ऑफ द डे के बीच में जो भारी गैप रह जाता था, टाइम वेस्ट होता था, उसको कवर करने की कोशिश की गई है। एक ऐसा आवर जो फ्री टाइप का आवर है, जहां कोई पुराने जो रूल्स एंड प्रोसीजर में नोटिस दिया गया है, जो पीरियड, उसको दरकिनार करते हुए आप मैटर रेज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज हाउस में बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन के तो नहीं होगी। तो फिर रूल्स ये कहते हैं कि भाई आप 10 बजे से पहले नोटिस देंगे कि आज हमें 0 hour में ये मैटर रेज करना है, तो परमिशन जरूर लेनी है। ओके, मूव टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। Article 123 gives President the power to legislate through an ordinance if it is not possible for the Parliament to enact a law immediately. While an ordinance may amend or repeal any act, its life is temporary, and an ordinance must approve by the Parliament within 6 weeks of the days of its reassembly, after which the ordinance ceases to have effect।
सो लगभग सारा का सारा ऑर्डिनेंस पावर को समराइज करता हुआ सा एक क्वेश्चन है, आपने तीनों स्टेटमेंट याद कर लेनी है. So if we talk about ordinance promulgation power of the president under article 1, 2, 3, अगर पार्लियामेंट का कोई भी हाउस सेशन में नहीं है, ईदर ऑफ द हाउस अगर सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमोगेट कर सकते हैं, लॉ को ऑर्डिनेंस रूट से लाया जा सकता है. लेकिन एक्ट और ऑर्डिनेंस का जो कोर फर्क है वो यही है कि एक्ट परमानेंट होते हैं और ऑर्डिनेंस टेम्परेरी है. तो साथ में शर्त ये भी है कि जैसे ही हाउस रीअसेंबल होंगे, फिर 6 वीक के पीरियड के अंदर अंदर हाउसेस से उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, तो वो एक्ट बन जाएगा, मतलब उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करता हुआ एक बिल प्रेजेंट किया जाएगा. और वहां पर मिनिस्टर इन कंसर्न अर्जेंसी भी बताते हैं क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा. हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल शर्त नहीं है, हमारी कन्वेंशन है. और 6 हफ्तों के अंदर अगर इसको अप्रूवल मिल गया हाउस से तो एक्ट बन जाएगा, और अगर नहीं मिला तो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाता है. सो इट इज टेम्परेरी इन नेचर. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मूव टू, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस in the Parliament of India, consider the following statement. The President of India addresses both the houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, at the beginning of first session after each general election. Under Article 87 of the Constitution, the President also addresses both the houses at beginning of the first session each year. So, directly yaad kar lein statement ko. This is a constitutional provision emanating from Article 87 के प्रेसिडेंशियल एड्रेस किन किन मौकों पर किया जाएगा. सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट इन नेचर. मूव टू, consider following pairs, and this is about the majority concept. So here it comes. Simple majority, a majority of total membership of each house and majority of not less than 2/3 of members present and voting in each house. ये पढ़ने में ही सिंपल नहीं लग रहा है, तो सिंपल मेजॉरिटी कैसे हो जाएगी. चलिए अगला देख लेते हैं. स्पेशल मेजॉरिटी, अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो दिस इज बेसिकली अ क्रॉस कनेक्शन. तो स्पेशल मेजॉरिटी की डेफिनेशन ऊपर और सिंपल मेजॉरिटी की नीचे दी गई है. विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच? नन. नीदर इज करेक्टली मैच. सो इफ वी टॉक अबाउट सिंपल मेजॉरिटी, सो सिंपल मेजॉरिटी इज द मेजॉरिटी of more than 50% present and voting members in the house. वो मेंबर जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं. Hence, absent और नॉन वोटर का नंबर माइनस कर दिया जाता है. When it comes to special majority, so यहां पर स्टेक हाई है 2/3. जहां पर भी 2/3 का कॉन्सेप्ट आ गया वो अपने आप में स्पेशल मेजॉरिटी है. So it can be 2/3 majority present and voting in the house only as per Article 249. Then it can be 2/3 majority of total strength of the house as per Article 61 of the Constitution, and then this is rather 368, the constitutional amendment. So it demands for more than 2/3 of present and voting and also more than 50% of total strength of the house. Hence, neither statement is correct. Move to regarding the parliamentary committees. Consider the following statement. The members of these committees are elected or nominated from among the members of parliament from both house. Correct. The standing committees are temporary committees that are constituted for fixed term, usually for a year. Then ad hoc committees are permanent committees formed to investigate a specific issue or events that require immediate attention. So देखिए इनमें दोनों में एक एक वर्ड चेंज करके मिस्टेक कराई गई है. जैसे स्टैंडिंग कमेटी और टेम्परेरी कमेटी. सर जो स्टैंडिंग है ये तो है ही परमानेंट कमेटी. तो नॉर्मली 1 साल के लिए इलेक्शन होता है, मेंबर्स री-इलेक्ट होते हैं, लेकिन ये हमेशा काम करती रहती हैं. जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है. और जो दूसरी है एडहॉक कमेटी, अब जब खुद ही आप एडहॉक कह रहे हैं तो फिर परमानेंट तो होंगी नहीं है. तो एडहॉक कमेटी कई बार वक्त पड़ने पर बना ली जाती है कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल आया है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी प्रपोजल है, उसको जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है. सो हियर इट कम्स दैट ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. वी हैव टू फाइंड द करेक्ट वन. ओके,
With reference to the Indian Parliament, which of the following statement best describe the recess? Now, खुद ही कह रहा है ये क्वेश्चन बेस्ट डिस्क्राइब. इस तरह के क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 भी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही होती हैं, लेकिन आपको उसमें बेस्ट सूटेबल चूज करना होता है. नाउ हियर इट कम. रिसेस क्या है? It is the period between the prorogation of parliament and reassembly in new session. Point 1. Second, it is the period between adjournment of the parliament and it is reassembly on a new day. बिल्कुल गलत. तो याद रखिएगा, adjournment is just a slight break within the session. तो उसको recess नहीं कहेंगे आप. Then it is a period between the winter session and budget session of the parliament. Then it is a gap of 6 months between 2 sessions of the parliament. देखिए, ये तो आर्टिकल 85 में प्रिस्क्राइब है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मोस्ट सुटेबल नहीं है. अब ये दोनों काफी हद तक सुटेबल हैं कि पहली, इट इज द पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली इन द न्यू सेशन. और दूसरी तरफ से इसी चीज को दूसरी तरह लिख रहे हैं कि विंटर सेशन और बजट सेशन के बीच का वक्त. तो अगर मैं अदरवाइज कहूं तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. आखिर रिसेस क्या होती है? 2 सेशन के बीच के गैप का पीरियड, और दोनों ही को सिग्निफाई कर रहे हैं. लेकिन फिर प्रॉब्लम वही कि बेस्ट सूटेबल कौन सी है? तो अगर टेक्निकली डेफिनेशन देखी जाएगी तो वो होगा प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली इन द न्यू सेशन. ए विल बी द आंसर. अगेन कोशिश करें, अगर कहीं पे भी इस तरह का बेस्ट एग्जाम्पलीफाई, बेस्ट डिफाइन, बेस्ट सूटेबल चीज आती है तो कोशिश करें बिल्कुल कोर को हिट करेंगे. ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके कोई भी टिक कर दिया कि हाँ सही तो लग ही रहा है. ओके, वी मूव टू कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The speaker cannot vote in the first instance, but he can exercise casting vote in case of equality of votes. Now, I believe we all know that speaker को casting vote दिया जाता है. ये first instance पे कभी वोट नहीं करेंगे. जब भी कभी मैटर टाई हो जाए, 50-50 हो जाए, तब ये वोट करेंगे. और ये सरकार के पक्ष में, सरकार के खिलाफ कहीं भी वोट कर सकते हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ से भी एग्जम्पशन मिला होता है. Then the statement 2, the absence of a vote in the first instance will make the position of the speaker impartial. तो स्पीकर से उम्मीद की जाती है कि वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल तरीके से बिहेव करें, प्रॉपर इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर हाउस के बिजनेस को ट्रांजैक्ट करें. तो दोनों ही स्टेटमेंट ना सिर्फ करेक्ट हैं, बल्कि जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट. इसीलिए ये प्रोविजन दी गई है ताकि उनकी इम्पार्शियलिटी को हम एस्टैब्लिश कर सकें. हेंस आवर आंसर इज ए. मूविंग टू कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. दोज अमेंडमेंट्स दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेस विल नॉट बी प्रपोज्ड ड्यूरिंग द जॉइंट सिटिंग. तो अगर जिन अमेंडमेंट पे डिसएग्रीमेंट है, अगर वही प्रपोज नहीं करनी है, तो फिर जॉइंट सिटिंग क्यों कराई जा रही है? ओके, its provision is applicable to ordinary bills, financial bills only and not to money bills and constitutional amendment bill. तो याद करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरह के बिल हैं जो पार्लियामेंट में ओरिजिनेट हो सकते हैं: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. रिलेटेड आर्टिकल्स आर 107, 110, 117 एंड देन 368. नाउ हियर इट कम्स. मनी बिल पर क्योंकि डेडलॉक क्रिएट हो ही नहीं सकता है, राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन मिलते हैं, तो जॉइंट सिटिंग का कोई मतलब ही नहीं है. और 368 आर्टिकल में ये लिखा गया है दैट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोथ हाउसेज विल वोट सिटिंग सेपरेटली. तो उस पर भी जॉइंट सिटिंग कॉल नहीं की जा सकती है. सो अल्टीमेटली ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल पर ही जॉइंट सिटिंग कॉल की जाएगी. एंड फर्दर इट इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. यस, ऑस्ट्रेलिया से हमने ये लिया है. एंड प्लीज रिलेटेड आर्टिकल भी याद कर लीजिए. आर्टिकल 108 टॉक्स अबाउट द जॉइंट सिटिंग. ऑफ विच जॉइंट सिटिंग वी आर टॉकिंग अबाउट? दिस इज लार्जली अंडर आर्टिकल 108, जहां पर किसी बिल को लेकर हुए डेडलॉक. डेडलॉक मीन्स कंप्लीट डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ओवर द पैसेज ऑफ द बिल. इस डेडलॉक को ओपन करने के लिए प्रेसिडेंट विल कॉल अ जॉइंट सिटिंग, जहां दोनों हाउसेस बैठकर वोटिंग करते हैं और बिल का फेट डिसाइड करते हैं. सो हियर आवर आंसर इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मूव टू विद रेफरेंस टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. CAG is appointed by the president by warrant under his hand and seal
and provided with the tenure of 6 year or 65 year of age, whichever is earlier. मेरे ख्याल से क्या अगर आपने पढ़ा हो तो ये लाइन तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी. So yes, it is correct. He is eligible to hold any office after retirement, either under the government of India or any state with prior permission of the president. अब ये जो आखिरी लाइन डाली है ना कि with the prior permission of the president, इससे बड़ी रोमांटिक सी लाइन लग रही है कि हाँ प्रेसिडेंट की परमिशन से तो हो ही जाएगा. बट याद रखें, देयर इज अ बार. जो भी पर्सन एक बार कैग अपॉइंट हुए, आफ्टर डिमिटिंग द ऑफिस, ही और शी कैन नॉट ज्वाइन एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. ये इसीलिए है ताकि कैग इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल तरीके से अपना काम कर सके. सो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. वी हैव टू फाइंड द करेक्ट वन. ओनली वन इज अवर आंसर. With reference to department related standing committees in the Parliament of India, consider the following statement. DRSCs under the purview of Rajya Sabha have members only from Rajya Sabha, point 1, and second, they can propose cut motions related to the demand for grants of respective ministry or the department, and both the statements are incorrect one. We have to find correct. Neither is our answer. तो याद रखें, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 1993 में आई थी. 2004 में इनका नंबर बढ़ाया गया. पहले 17 ऐसी कमेटी थी, अब 24 ऐसी कमेटी हैं. हर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 31 लोग होते हैं, 31 MP होते हैं. और इनमें से 21 होंगे लोकसभा के और 10 होंगे राज्यसभा के. तो सिर्फ राज्यसभा वाली बात गलत है, बल्कि राज्यसभा के तो कम मेंबर्स हैं और ये सारे ही नॉमिनेट होते हैं. सो ये इलेक्टेड नहीं है. सारे के सारे स्पीकर नॉमिनेट करेंगे और राज्यसभा के मेंबर राज्यसभा के चेयरपर्सन नॉमिनेट करेंगे. और फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज जो किसी ना किसी मिनिस्ट्री से डील कर रही होती हैं, इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है बजट सेशन के दौरान. बजट सेशन में आती है कमेटी स्टेज और बजट की जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की एलोकेशंस हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दी जाती हैं ताकि वो स्क्रूटिनाइज कर सकें. लेकिन स्क्रूटिनाइज करते वक्त कट मोशंस जैसे टूल का यूज नहीं करेंगे. कट मोशन तो हाउसेज में वोटिंग के टाइम पर MPs यूज कर सकते हैं, वो भी सिंबॉलिकली. सो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. Solicitor General is the second most senior law officer in India after Attorney General. Okay. The office of Solicitor General is not mentioned in the Constitution of India. Yes, it is okay. And Solicitor General of India is appointed by the Prime Minister on the advice of Attorney General of India, and we have to find the correct statement. So, याद रखें, Solicitor General of India is the second highmost authority or law office in the country after Attorney General of India. लेकिन साथ में ये स्टेटमेंट भी सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. अंडर आर्टिकल 76 इट इज ओनली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बाद में क्रिएट की गई है एग्जीक्यूटिव रूट के थ्रू ताकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उनके काम में कुछ हेल्प मिल सके. तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. एंड सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करते हैं. यहां पर भी आप याद रखेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की भी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के हाथों में है upon the advice of cabinet committee on appointments. President yahan par hona chahiye. So our answer is only two statements are correct. Move to with reference to the office of whip in the Indian Parliament. Consider the following statements. It is mentioned in the rules of the House. Bilkul nahi. Every political party, whether ruling or opposition, has its own whip in the Parliament. Yes, sir. In the violation of the directives of the whip could lead to suspension of the membership of the House. Yes, it is correct. And we have to find the correct option. Okay, now come to this thing. Whip का जो system है, जो political party, सभी political party अपने MPs के behavior को regulate करने के लिए in the House एक whip appoint करते हैं. तो वे पोस्ट भी है और यही जब कुछ ऑर्डर अपने MPs को देते हैं कि फलां तारीख को आप जो है हाउस के अंदर आना है, किस बिल के सपोर्ट में या किस बिल के अगेंस्ट वोट करना है, किस मैटर पे क्या स्टैंड लेना है. तो इन ऑर्डर्स को भी कहा जाता है विप, के विप इशू कर दिया गया है. तो सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एक विप रखते हैं. लेकिन ये पोस्ट प्योरली कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही
इसको लेके रूल बुक्स में कोई एंट्री की गई है, तो स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं इसके पास। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाने के बाद ये जरूर है कि अगर विप को वायलेट करते हैं तो इट कैन अट्रैक्ट disqualification under anti-defection law. So, second and third option is correct. Only 2 is our answer. Move to consider the following statements. The 24th Constitutional Amendment Act of 1971 made it obligatory to the President to give his assent to the Constitutional Amendment Bill. And second, the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 made the President bound by the advice of Council of Ministers headed by the Prime Minister, and we have to find correct option. So here it comes. देखिए, Constitution के थ्रू 2 बार प्रेसिडेंट को ड्यूटी बाउंड किया गया है कुछ चीजों के लिए, और दोनों ये अमेंडमेंट इंदिरा गांधी मैम के टाइम पे हो रही है। 24th अमेंडमेंट 1971 में जब आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया, जब इसमें पावर वर्ड यूज हुआ, पहला पूरा क्लॉज ऐड किया गया है, तो साथ ही में प्रेसिडेंट को ड्यूटी बाउंड कर दिया दैट प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर प्रेसिडेंट कोई भी वीटो पावर यूज नहीं कर सकते हैं। और फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 में आर्टिकल 74, जहां पर ये लिखा है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, वहां पर शैल वर्ड का यूज किया गया दैट प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी बाउंड दूसरी बार कर दिया गया प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही सलाह पर काम करने के लिए। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन दोनों ही स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। सी इज द आंसर। मूव टू with reference to the double membership in the Indian Parliament, consider the following statements. If a person is chosen for membership in both houses of the Parliament, his seat in Lok Sabha becomes vacant by default. मतलब अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह चुने गए तो क्या लोकसभा की सीट बाय डिफॉल्ट चली जाएगी? एन आंसर इज नो। अगर ऐसा होता है कि एक ही वक्त पे, एंड दिस वेरी हाइपोथेटिकल, कि अगर एक ही वक्त पे लोकसभा का इलेक्शन भी हो गया, राज्यसभा का भी हो गया और पर्सन दोनों के लिए चुने गए हैं, तो ऐसे पर्सन को 10 दिन के अंदर अंदर ऑप्ट आउट करना पड़ेगा कि वो कौन सी सीट रिटेन करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर उन्होंने 10 दिन में ऑप्ट नहीं किया तो राज्यसभा की सीट उनकी वेकेंट हो जाएगी। एंड देन इफ अ मेंबर इज इलेक्टेड टू द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, his seat in the parliament becomes vacant if he does not resign his seat in the state legislature within 6 months. यहाँ पर टाइम पीरियड भी बड़ा मेंशन कर रहे हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर बाय चांस ऐसा होता है, अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन के, और ये हाइपोथेटिकल नहीं रहेगा शायद अगर वन नेशन वन इलेक्शन होने लग जाए, तो अगर कोई पर्सन एमएलए का इलेक्शन भी जीत जाए और पार्लियामेंट के हाउस का भी जीत जाए, तो इनको 14 दिन के अंदर अंदर, नॉट इन द 6 मंथ, 14 दिन के अंदर अंदर ये बताना होता है कि कौन सी सीट ये रिटेन करेंगे। सो हियर बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, सो आवर आंसर इज डी, नीदर वन नॉट टू। मूव टू वेरी प्लेन एंड सिंपल, which of the following articles states that ministers shall be appointed by the president on the advice of prime minister? Article 72, 74, 75, 78। अब मेरे ख्याल से 74 और 75 में कंफ्यूजन होगा, तो 74 में तो ये डिक्लेरेशन है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, लेकिन 75 में देयर आर अदर प्रोविजंस फॉर द मिनिस्टर्स, जिनमें से एक शर्त ये that prime minister will be appointed by the president and other ministers will be appointed by the president on the advice of prime minister. Prime minister is the captain of the team. वो डिसाइड करेंगे टीम में कौन खेलेगा, कितने देर खेलेगा, कब उसको टीम से बाहर कर दिया जाए। So article 75 is our answer. Consider the following statements with respect to the money bill. It contains provisions only, मैंने पहले भी कहा था जहां से वर्ड आ जाए थोड़ा सावधान रहें, एक्सट्रीम, dealing with the declaration of any expenditure charged on the consolidated fund of India or increasing the amount of any such expenditure. So देखिए ओनली इससे तो नहीं डील करता है। आर्टिकल 110 में तो वेरियस मनी मैटर्स दिए गए, सो इट कैन बी लाइक टैक्स, बोरोइंग, एंड देन इट कम्स टू द फंड्स। सो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। देन द बिल इज नॉट टू बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ बाय रीजन
only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties. तो ये एक्सेप्शन क्लॉज है. अगर बिल में सिर्फ कुछ फाइन्स की बात की जा रही है, कुछ पेनल्टी इंपोज करने की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इस वजह से उसको मनी बिल नहीं डील करेंगे. स्पेसिफिकली आर्टिकल 110 में जो 7 मनी मैटर दिए गए हैं, उन्हीं के ऊपर वो बिल होना चाहिए, उनमें से किसी एक या उससे ज्यादा के ऊपर. देन द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय हाउस ऑफ पार्लियामेंट. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. सो president by convention, either he will be giving assent or on the advice of council of ministers he can deny the assent to a money bill. लेकिन इस पर वो reconsideration की पावर यूज नहीं करेंगे, सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं कर सकते हैं. विद इन अ रीजनेबल टाइम उनको assent देनी होगी. So how many of the statements are correct? Only 2 statements are correct. A special address by the governor refers to the address delivered by the governor. और ये जो स्पेशल एड्रेस की बात हो रही है, तो देखिए ऐसा स्पेशल एड्रेस या डिफरेंट एड्रेस के उस वर्ड के फेर में ना पड़े. सो बेसिकली ये वही एड्रेस है जो कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन और फर्स्ट सेशन ईच ईयर दिया जाता है. सो इट इज नॉट अबाउट प्रेसिडेंट रूल, वो तो आर्टिकल 356 में वैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, या नेशनल इमरजेंसी जब डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली होती है, सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो रही है. याद रखें, नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट ये है ही नहीं कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाए. ये तो प्रेसिडेंट रूल का इफेक्ट हो सकता है कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को या डिसॉल्व कर दें या सस्पेंडेड एनिमेशन में कर दें. तो बाय निगेशन दोनों रिड्यूस्ड हैं. और फिर जैसे प्रेसिडेंट 2 मौके पे तो एड्रेस करते ही हैं हाउसेस को, एक एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर दैट इज बजट सेशन, और दूसरा जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा को. ऐसे ही स्टेट में बजट सेशन को एड्रेस करने आएंगे गवर्नर, और साथ ही में जब भी कभी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे तब भी एड्रेस करेंगे. ओके, नेक्स्ट वी कम टू which of the following suggested the governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political links or should not have taken part in the politics in the recent past. So it's very controversial about the appointment of the governors के सेंटर की सरकार हैंड पिक करके अपनी आइडियोलॉजी या अपने गुड बुक्स वाले लोगों को गवर्नर लगाते हैं. तो सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे बेहतर तरीके से काम करें, क्या सजेशंस हो सकती हैं, इसके लिए 1983 में फॉर्म किया गया था सरकारिया कमीशन. तो सरकारिया कमीशन की एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है अबाउट द ऑफिस ऑफ गवर्नर. 4 से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, और सबका निचोड़ ये कि एक अपॉलिटिकल पर्सन होना चाहिए गवर्नर की पोस्ट पर. तो एक तो आउटसाइडर वाला जो सिस्टम आज हम इन प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि नॉर्मली स्टेट में जो गवर्नर लगाए जाते हैं वो उस स्टेट के रेजिडेंट नहीं होते हैं, उस स्टेट को बिलोंग नहीं कर रहे होते हैं. जैसे पंजाब में आप चेक करें श्री गुलाब चंद जी कटारिया, तो वो किस स्टेट से आते हैं? पंजाब से तो नहीं है. तो ये जो अपॉलिटिकल और पॉलिटिकल टाइज कट करके पर्सन को लगाने वाली बात है, ये सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था. देन वी कम टू with reference to the legislative assembly of the state in India, consider the following statement. The governor makes a customary address to the members of the house at the commencement of first session of the year. And then when a legislature, state legislature does not have a rule on particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter and we have to find the correct statement. So very first I believe सभी को पता है, जैसे प्रेसिडेंट साहब 2 मौकों पर एड्रेस करते हैं कम से कम, कि जब भी इलेक्शन हुआ तो नई लोकसभा को एड्रेस करने का काम, और बजट सेशन पे तो ऐसे ही गवर्नर साहब एड्रेस करेंगे. और दूसरा, आप अगर नहीं पता है तो उसको याद कर लें एज अ मैटर ऑफ रूल. अगर किसी चीज पर स्टेट लेजिस्लेचर में रूल क्लियर नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो लोकसभा के रूल को ही कंसीडर किया जाता है. हेंस बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. Then, which of the following is not a correct statement regarding the provision of legislative council in the state legislature? Specifically, council के बारे में पूछा जा रहा है. So, state of Bihar and Telangana have legislative council. Absolutely correct. So, right now, UP, Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. These are the states जहां पर 2 houses हैं legislative assembly के साथ साथ council भी है. Then, the total number of the members in the legislative council of a state shall not exceed 1/3 of the total number of the members in the legislative assembly. This is also correct.
लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ डिपेंड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ के ऊपर। तो एज अ मैटर ऑफ रूल किसी भी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका साइज ज्यादा से ज्यादा 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। दिस द मैक्सिमम लिमिट। और फ्लोर लिमिट क्या है? दैट इज 40 मेंबर्स। तो 40 मेंबर कम से कम होंगे और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ। देन 1/12 ऑफ ऑल द मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय द electorates consisting of local bodies and authorities. Now this is the wrong statement. And further, obviously वो तो right होनी है क्योंकि 1/12 of the all members shall be elected by graduates residing in the state जिनको 3 साल हो चुके हों डिग्री किए हुए। तो याद रखें यहाँ पर 1/12 की जगह होना चाहिए था 1/3। तो सिंपल है, इसको एक ही बार में याद कर लें। जो कॉम्पोजिशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, 1/3 की शर्त 2 बार आती है। 1/3 members will be elected by the local bodies and furthermore 1/3 will be elected by the MLAs, elected MLAs in the state. And then 1/12 की डिजिट आती है जिसमें there is teachers जो कम से कम एलिमेंट्री लेवल से ऊपर पढ़ा रहे हो, 3 साल हो चुके हों, और 1/12 की शर्त आती है कि 1/12 को इलेक्ट करेंगे स्टेट के ऑर्डिनरी रेजिस्टेंट जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनको 3 साल हो चुके हों। एंड रेस्ट which is remainder 1/6 after mathematical operation that will be nominated by the governor. So third option is incorrect. Move to consider following statements. No criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. A very strong statement. I'll make it very clear under Article 361. प्रेसिडेंट और गवर्नर की पोस्ट की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ये प्रोविजन दी गई है, इम्यूनिटी दी गई है। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के ही पोस्ट पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता है। अगर पहले से कोई क्रिमिनल केस आ रहा है तो उसको परस्यू नहीं करेंगे, वो रुक जाएगा। लेकिन ये सारी उम्र के लिए इम्यूनिटी नहीं है जब तक वो पोस्ट पे है। तो पोस्ट से डिमिट होने के बाद क्रिमिनल केस पुराना भी कंटिन्यू करेगा और नया केस भी इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। एंड देन द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जनरल रूल है, कहीं पर भी हम पोस्ट को थोड़ा सिक्योरिटी देना चाहें तो ये फॉलो किया जाता है। एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। सो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट वन। Moving to consider the following statements. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the Assembly. Second, whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his or her office immediately. And we have to find the correct one. Now, this is one of the previous year question और state level पे different exam में कई बार पूछी जा चुकी है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। देखिए, स्पीकर अगर एज अ मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाए असेंबली से तो फिर वो स्पीकर भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि स्पीकर के लिए शर्त है स्पीकर शैल बी चूजन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द हाउस अमंग देमसेल्फ। तो अगर एज अ लेजिस्लेटर आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो फिर स्पीकर भी नहीं रहेंगे। हाँ, ये वीजा ट्रू नहीं है। अगर स्पीकर का रिमूवल हो जाए विद द इफेक्टिव मेजॉरिटी इन द हाउस तो वो अपना लेजिस्लेटर की भूमिका निभाते रहेंगे। और साथ ही जो दूसरी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। काफी अट्रैक्टिव सी लगती है कि यार जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसॉल्व होगी तो अब स्पीकर क्या करेंगे? तो स्पीकर भी साथ के साथ रिजाइन कर देंगे। लेकिन एज अ प्रैक्टिस वी कंटिन्यू। सो स्पीकर के लिए शर्त यह है कि स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद भी, और सेंटर में लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद लोकसभा स्पीकर ये अपने ऑफिस में कंटिन्यू करते रहते हैं। और कब रिजाइन करते हैं? जैसे ही न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा फॉर्म होती है और उसकी मीटिंग होने जा रही होती है तब रिजाइन करते हैं। सो बेसिकली इट्स जस्ट टू शो द कॉन्टिन्यूएंस इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर। एकदम से रिजाइन करने की जरूरत नहीं है एट द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, सो हियर वी आर हैविंग ओनली वन statement. That first statement is correct. Which of the following is not related to the powers of the governor? अब इनमें से कौन सी पावर नहीं है गवर्नर के पास? Diplomatic and military. I believe you have solved the question already. चलिए अगली चेक कर लेते हैं। Power to appoint advocate general. तो जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करते हैं, ऐसे ही स्टेट के अंदर
under Article 165, Advocate General will be appointed by the governor. Then summoning, proroguing, and dissolving the state legislature. Yes, it is true. Then power to grant pardon, reprieve, respite, remission. So जहां Article 72 में प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, ऐसे ही आर्टिकल 161 में गवर्नर ऑल्सो एंजॉय पार्डनिंग पावर. तो जाहिर सी बात है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर्स नहीं हैं स्टेट गवर्नर्स के पास. ये मैटर वैसे भी सेंटर का है. तो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द कंट्री एट द सेंट्रल लेवल और साथ ही प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस. ये पावर प्रेसिडेंट की है. ए इज अवर आंसर. Which of the following articles of the Constitution of India contains provision for the abolition and creation of legislative council? और ये भी वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. एंड आंसर इज आर्टिकल 169. उसको प्लीज याद कर लें कि आर्टिकल 169 में अगर किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश करना है जहां नहीं है, या फिर अगर वहां काउंसिल है तो उसको अगर अबॉलिश करना है, दोनों के लिए आइडेंटिकल प्रोसीजर है, एक ही आर्टिकल 169 में दिया गया है. सो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 169 गिव्स अस द पावर टू हैव और नॉट टू हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट. और प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. इस स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेंगे टू दैट इफेक्ट कि वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अबॉलिश करना चाहते हैं. फिर ये रेजोल्यूशन जाएगा पार्लियामेंट में एंड पार्लियामेंट मे बाय लॉ कैन गिव टू दैट इफेक्ट, चाहे तो एस्टैब्लिश कर दें चाहे अबॉलिश कर दें. ये जरूर याद रखें कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ये रेजोल्यूशन बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता है पार्लियामेंट के ऊपर. सो प्रोसीजर शुरू होता है स्टेट से, लेकिन पावर है पार्लियामेंट के पास, यूनिलैटरल पावर नहीं है. मूव टू कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. The Legislative Council of a state in India can be large in size than half of the Legislative Assembly of the particular state. थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस करके हटे हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल कैन बी 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. सो 1/2 वाली बात गलत है. अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट nominates the chairman of legislative council of that particular state. Again, a wrong statement. The chairman of council is chosen from amongst the members only. Governor nominate नहीं करते हैं. We have to choose the correct one, and neither one nor two is correct option. Which of the following are discretionary powers given to the governor of state? Now this is very critical. कौन सी power कॉन्स्टिट्यूशन में या अदरवाइज गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं? सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल. आई बिलीव यू ऑल नो अंडर आर्टिकल 356 गवर्नर साहब ऐसा कर सकते हैं और इसके लिए उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है. देन अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स. सॉरी सर, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स इज नॉट अ प्योर डिस्क्रिशनरी पावर. सो नॉर्मल सेंस में बात करें, द सीएम विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर and then other ministers will be appointed by the governor on the advice of CM. ये CM का prerogative है. Then reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the president, absolutely right under Article 200. Governor can reserve any bill passed by the state legislature for presidential assent. इस सूरत में आर्टिकल 201 ये कहता है कि ऐसा बिल फिर प्रेसिडेंट की असेंट के बाद ही एक्ट बनेगा. Then making the rules for the conduct of business of the state government. अब ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि गवर्नर और यही पावर सेंटर में प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं कि फॉर द स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू सम अथॉरिटीज, मिनिस्टर्स, गवर्नर इस तरह के रूल्स बना सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. ये सारे ही रूल स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो फाइनली वी आर हैविंग 1 and 3. B is our answer. Moving to which of the following is correct regarding the office of governor in India? Again, one governor can act as governor of more than one state by 7th, और इसकी amendment भी याद रखिएगा, by 7th constitutional amendment 1956. This provision was specifically mentioned in the constitution. Then governor has the power to grant pardons, reprieve, remission, punishment to person convicted under state law. Yes, we have already discussed under Article 161. That is the power of the governor.
Then governor is appointed by the president on the recommendation of chief minister of respective state. सर ऐसा होता तो पता नहीं कितने झगड़े खत्म हो गए होते. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं. सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. 1 and 2 only correct answer. Consider the following statement. Specifically for the Punjab, the governor of Punjab is concurrently the administrator of Chandigarh, and second, the governor of Kerala is concurrently the administrator of Lakshadweep. और हमें correct statement choose करनी है. So the game is this, that under Article 239 और जो UTs की provision है वहाँ पर यह है कि administrator president appoint करेंगे. चंडीगढ़ में भी यही सिस्टम लागू था, बट मिलिटेंसी का जो एरा रहा है, खासकर जून 1, 1984 को जब ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑल दैट थिंग वाज हैपनिंग, तब ये रूल चेंज किए गए थे और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर पंजाब के ही गवर्नर को चार्ज दे दिया गया था. मतलब वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि किसी भी गवर्नर को एडजॉइनिंग यूटी का चार्ज दिया जा सकता है और फिर वो इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगा, क्योंकि सेंटर की डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा. तो चंडीगढ़ में तो ये व्यवस्था है कि पंजाब के ही गवर्नर के अंडर आएंगे, लेकिन केरल और लक्षद्वीप के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है. लक्षद्वीप का अलग से एडमिनिस्ट्रेटर है जो वहां की कैपिटल कावारती में बैठते हैं. सो आंसर इज 1 ओनली. मूविंग टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The Constitution of India provides that the Legislative Assembly of each state shall consist of not more than 450 members chosen by the direct election from territorial constituencies in the state. Sorry sir, बस नंबर की मिस्टेक कराई गई है. लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम कंपोजिशन देख चुके हैं. इफ आई टॉक अबाउट द स्टेट्स, सो सीलिंग लिमिट है 500 और फ्लोर लिमिट है 60 नॉर्मल. ये स्ट्रेंथ के बीच में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नंबर दे दिया जाता है. अभी सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश के पास है विद 403 MLAs. Then a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of state if she is less than 25 years of age. So what is the minimum age to contest legislative assembly election? And that is, of course, the 25 year. We have to choose the correct one. Second only is our answer. Moving to, consider the following statements regarding the office of governor. The first statement, the Constitution lays down qualifications for the appointment of a person as the governor. So क्या qualification specifically laid down है? Under Article 157 of the Indian Constitution, qualification laid down की गई हैं to become the governor. हालांकि qualification के नाम पर वहाँ सिर्फ इतना लिखा है, a citizen of India who has attained the minimum age of 35 years. That's it. दो qualification की बात की गई है. The Constitution lays down the grounds upon which governor may be removed, and this is wrong statement. Rather, pleasure doctrine invoke की गई है. So वैसे तो 5 साल का टर्म दिया गया है गवर्नर को, but subject to pleasure of the president. तो यहाँ पर कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है किस ग्राउंड पे गवर्नर को रिमूव किया जाएगा. जैसे हम पढ़ते हैं कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल बी रिमूव फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, या प्रेसिडेंट खासकर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नर के लिए ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, रादर प्लेजर डॉक्ट्रिन है. सो आंसर इज 1 ओनली. ओके. Disqualification of the members of the state legislature is decided by which of the following authorities? President of India, the State Election Commission, Governor of the state, and all of the above. Now, best suitable answer is Governor of the state. वो अलग बात है कि ये डिसीजन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस पर लेते हैं, लेकिन गवर्नर इज द राइट ऑब्जेक्टिव आंसर. अब यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर कर लें. इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली द स्टेट्स, तो जो लेजिस्लेटर हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं. एक जनरल डिस्क्वालिफिकेशन विच इमर्जेस आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, और फिर दूसरी एक अलग से रख लीजिए विच इमर्जेस आउट ऑफ शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डिफेक्शन लॉ. सो अगर जनरल डिस्क्वालिफिकेशन है कोई भी तो गवर्नर डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की डिस्क्वालिफिकेशन है, दिस इज डिसाइडेड by the presiding officer of the house. बस ये फर्क याद रखिएगा. Then we come to with reference
to the chief minister of any state as provided by the constitution, consider the following statement. The term of the chief minister is fixed for 5 years as per the constitution of India. काफी अट्रैक्टिव सी लग रही है कि हाँ 5 साल ही तो होता है. The chief minister need not to be a member of the state legislature when he is appointed as a chief minister. अब ये भी सही से लग रहा है कि हाँ भाई एमएलए होगा तभी तो चीफ मिनिस्टर बन पाएगा. And we have to find correct one. So interestingly 5 साल का टेन्योर कोई फिक्स नहीं किया गया है. So 5 साल का टेन्योर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए दिया गया है. लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है विद इमीडिएट इफेक्ट. सो 5 साल का टर्म फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये याद रखिएगा. और दूसरा, चीफ मिनिस्टर नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर जब उनको अपॉइंट किया जाए. एंड दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो बेसिकली क्या है कि इट गोज लाइक 6 month क्लॉज. तो कोई भी पर्सन बिना लेजिस्लेटर बने भी 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है, वीजा विज सीएम भी रह सकता है. So this is correct statement. Like अभी वो काफी हंगामा चल रहा है ना इसी बीच के, दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है. तो मीडिया रिपोर्ट्स बहुत सारी हो रही हैं कि केजरीवाल साहब अब पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं. तो क्या टेक्निकली ऐसा पॉसिबल है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात तो नहीं है. तो यस, अगर एमएलए उनको सपोर्ट करते हैं, अपना लीडर चुनते हैं, तो 6 महीने तक बिना एमएलए बने भी यहाँ पर सीएम रह सकते हैं. सो answer, I'm not predicting this one, okay? I'm just making a example. So here it comes that our answer only 2 is correct answer, B. With reference to the parliamentary system of governance provided by the constitution, consider the following statement. Okay, parliamentary system के ऊपर है. Chief minister is the de jure executive head of the state and governor is de facto executive head of the state, and we have to choose correct one. Neither one is correct because mismatch किया गया है. तो ये जो 2 टर्म यूज करते हैं, de jure और de facto, तो क्या रेफरेंस है इनका? तो de jure हेड आप कुछ यूं समझे जैसे ऑन पेपर हेड कौन है, लेकिन असल डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर रहा है. और फिर de facto मतलब कि असल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है. तो जैसे हम सेंटर में पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट इज de jure हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज de facto हेड. ऐसे ही स्टेट में भी ये बात लाजिम होती है गवर्नर और सीएम के लिए. ओके, मूव टू विद रेफरेंस टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 164. या फिर एज पर द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम of government, the governor has to appoint the leader of the majority party in the state legislative assembly as the chief minister. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब हमारे यहाँ अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखें तो पीएम एंड सीएम आर द रियल डिसीजन मेकिंग इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड. लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्रोसीजर ले डाउन नहीं है कि कैसे सीएम की अपॉइंटमेंट होनी है. और ये सब चलता है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन. समझें इस बात को कि जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉस के अकॉर्डिंग तो चलते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी लॉ में नहीं लिखी गई हैं. प्रैक्टिस, कन्वेंशन, परंपराओं के तौर पर ही उनको फॉलो किया जा रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है. आर्टिकल 164 में इज द ओनली रिटन दैट सीएम विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम. प्रोसीजर ले डाउन नहीं है. हाँ, प्रैक्टिस ये है कि इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी बनती है, इलेक्शन जीतती है लेजिस्लेटिव असेंबली का, या फिर कोई पॉलिटिकल कोलिशन अगर इलेक्शन जीतता है, तो उसके लीडर को इनवाइट किया जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज सीएम. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड वन, द गवर्नर कैन नॉट एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. अब आइए दूसरी कन्वेंशन की तरफ. तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल कोलिशन इलेक्शन जीत के आ जाए तब तो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन नहीं है. जो मेजॉरिटी पार्टी उसके लीडर को इनवाइट करना पड़ेगा. लेकिन अगर हंग असेंबली आ जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशन को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अचीव नहीं हो रही है, इस सिचुएशन में गवर्नर एंजॉय सम डिस्क्रिशनरी पावर इन चूजिंग द पर्सन फिट टू बिकम सीएम. तो यहां पर क्योंकि लिख दिया गया कि
कि अंडर एनी सर्क्यूमस्टांसेस उसके पास कोई इंडिविजुअल जजमेंट की पावर नहीं है अबाउट सिलेक्टिंग द सीएम। अंडर एनी सर्क्यूमस्टांस, ये बात गलत है। हंग असेंबली में वो अपनी डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। सो हियर दैट वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन and then we are having only 2 as correct option. Consider the following statements. The readjustment and rationalization of territorial constituencies in the states on the basis of 2001 census is provided by 87th Amendment Act 2003. और फिर the maximum strength of legislative assembly is fixed at 545. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Maximum can be 500. So this is a wrong statement and first one is correct. So only one is our answer. और इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा. देखिए वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जब भी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जाए तो आप लेटेस्ट सेंसस का डेटा यूज करेंगे, लेकिन पहले तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको फ्रीज किया गया कि 1971 के बेसिस पर ही डिलिमिटेशन होगा और उसी हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स होंगी स्टेट्स में। बट फिर 87th अमेंडमेंट 2003 में ये तय किया गया, 87th अमेंडमेंट 2003 ये तय किया गया कि नंबर ऑफ सीट्स ऑफ एमएलएज इन द स्टेट, नंबर ऑफ सीट्स विल बी ऑन 1971 सेंसस। लेकिन जो बाउंड्रीज बनाई जाएंगी, जो रीड्रॉ हम कर सकते हैं बाउंड्री को, वो हम 2001 के सेंसस पे करेंगे। ये बेसिस ले लिया गया था। सो वन ओनली इज अ आंसर। With reference to legislative councils in the state, consider the following statements. The resolution for creation or abolition of the legislative council must be passed by the state assembly by special majority under Article 169. We discussed earlier. Yes, it is the correct statement. The creation or abolition of legislative council requires a constitutional amendment passed by a special majority of the parliament. No, sir. Again, under Article 169, it is written that Parliament may, by law, can create or abolish the Legislative Council. ये ordinary bill होगा, तो इसके लिए Constitution Amendment की जरूरत नहीं है. Constitution में power Parliament को दे दी गई है. And then the Parliament can unanimously, खुद से ही, abolish or create the Legislative Council and are not bound by the legislation of the State Assembly. So remember, unilateral decision नहीं है. आर्टिकल 169 की यूनिकनेस ये है कि प्रोसीजर शुरू होता है स्टेट लेवल से, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करती है, तब पार्लियामेंट को अख्तियार, ये पावर मिलती है कि वो बाय लॉ लेजिस्लेटिव काउंसिल उस स्टेट में क्रिएट या अबॉलिश कर सकें। सो यूनिलैटरल पावर नहीं है। सो आंसर विल बी दी ओनली वन ओनली। ओके, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1/6 of the members are nominated by the governor from amongst the persons who have a special knowledge or practical experience of literature, science, art, cooperative movement, social service and so on. So yes, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद वो 1/6 बचता है, तो 1/6 is correct option. आप रिमाइंडर भी कह सकते हैं बाकी कैटेगरी के अलावा। 1 is correct option. The Constitution has not provided for the maximum and minimum strength limit of legislative councils. 1/3 maximum, 40 minimum, हम डिस्कस कर चुके हैं, so the statement is wrong. Then 1/3 of the total members are elected by the graduates of 3 years standing and residing within the state. हमने composition भी पढ़ लिया कर लिया क्वेश्चन में, 1/3 नहीं है यहाँ पे, 1/12 की शर्त है, 1/12 from teachers and the graduates, 1/3 by the local bodies and MLAs. Okay, so here correct option, and we are having only one is correct option. So these were the important questions which you faced in last test. I hope it's now amply clear जो भी technicalities थी, और I believe कि ये टेस्ट आप जब अच्छे सॉल्व करते हैं, उसको याद करते हैं, तो दे विल बी इन फॉर्म ऑफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स के तौर पर आपके पास एक रिसोर्स तैयार हो जाता है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।